तो वहीं हेल्थ सेक्टर पर क्या कुछ कहना है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का, आगे देखिए। PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana will be launched with an outlay of about 64,180 crores over 6 years. This will develop capacities of primary, secondary and tertiary care health systems, strengthen existing national institutions and create new institutions to cater to detection and cure of new and emerging diseases. PM Atmanirbhar Swasth Bharat Yojana will be launched with an outlay of about 64. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कोरोना वैक्सीन पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। Today, India has 2 vaccines available and has begun medically safeguarding not only her own citizens against COVID-19 but also those of 100 or more countries. It is added comfort to know that 2 or more vaccines are also expected soon. Honorable Prime Minister launched the vaccination drive by crediting and thanking our scientists. We are ever grateful for the strength and rigor of their efforts. Having said that, we are all reminded time and again that our fight against COVID-19 continues into 2021. Now, just as it happened after the 2 world wars, there are signs that the political, economic and strategic relations in the post-COVID world are changing. This moment in history is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be the land of promise and. तो बजट में आत्मनिर्भर भारत पर क्या कहती हुई नजर आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आइए देखिए। Government announced the Atmanirbhar Bharat package to sustain the recovery further into the year. We also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. इंफ्रास्ट्रक्चर पर क्या कहना है वित्त मंत्री का, आइए सुनते हैं। Infrastructure needs long-term debt financing. A professionally managed development financial institution is necessary to act as a provider, enabler and catalyst for infrastructure financing. Accordingly, I shall introduce a bill to set up a development financial institution. I have provided a sum of 20,000 crore rupees to capitalize this institution. The ambition is to have a lending portfolio of at least 5 lakh crores for this DFI within 3 years. तो वहीं पावर सेक्टर पर वित्त मंत्री का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। A framework will be put in place to give consumers alternatives to choose from among more than one distribution company. The viability of distribution companies is a serious concern. A revamped, reforms-based, results-linked power distribution sector scheme will be launched with an outlay of 3,05,984 crores over 5 years. तो आत्मनिर्भर भारत का बजट जो पेश किया गया है, टैक्स सिस्टम पारदर्शी होना चाहिए, ये कहना वित्त मंत्री का। 75 से ज्यादा उम्र के लोगों को आरटीआर भरने की छूट है, एनआरआई को मिलेगी ऑडिट से छूट, टैक्स में वरिष्ठ नागरिकों को छूट दी गई है। बजट की बड़ी बातें आपको हम बता रहे हैं। देखिए, नए सैनिक स्कूल खोलेंगे, 100 नए सैनिक स्कूल खोलेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेह में खुलेगी, वित्त मंत्री ने यह कहा। बजट की बड़ी बातें आपको बता दें, उच्च शिक्षा आयोग का गठन करेंगे, 100
सैनिक स्कूल खुलेंगे, ये कहना वित्त मंत्री का। 2022 तक स्टार्टअप्स पर छूट जारी है, साथ ही मोबाइल और चार्जर महंगे होंगे, ये कहना है वित्त मंत्री का। राजकोषीय घाटा 9.5% रहने के अनुमान है। लोहे और स्टील उत्पाद सस्ते होंगे, वित्त मंत्री ने यह भी कहा। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़, साथ ही ये बजट आपदा में अवसर वाला है, वित्त मंत्री का ये कहना। तो 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की मंजूरी दी गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेह में बनेगी, साथ ही उच्च शिक्षा आयोग का गठन करेंगे, ये कहना वित्त मंत्री का। 100 नए स्कूल खोलेंगे। आपको बताएं कि 100 आर्मी स्कूल खोले जाएंगे। 2022 तक स्टार्टअप्स शुरू किए जाएंगे। राजकोषीय घाटा 9.5% रहने का अनुमान है। राजस्व बढ़ने से हालात ठीक होंगे, ये कहना वित्त मंत्री का। साथ ही वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए 80,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आपको हम बता दें कि 10 लाख करोड़ के पार है इस समय राजकोषीय घाटा, और फिलहाल राजकोषीय घाटा 9.5% रहने के अनुमान जो वित्त मंत्री ने जताए हैं। वित्तीय घाटे की भरपाई के लिए फिलहाल 80,000 करोड़ की रकम दी गई है। टैक्स सिस्टम पारदर्शी होना चाहिए, ये कहना वित्त मंत्री का। 100 नए आर्मी स्कूल खोले जाएंगे। 75 से ज्यादा उम्र के लोगों को आरटीआई में छूट है। राजकोषीय घाटा 9.5% के पार जाने की उम्मीद यहां पर वित्त मंत्री ने जताई है। फिलहाल आपको बताएं कि राजकोषीय घाटा 10 लाख करोड़ के पार है। ये बजट आपदा में अवसर वाला है, ये कहना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। तो ये बड़ी बातें हम बजट की आपको बता रहे हैं। किसानों की आय दोगुनी करने का उन्होंने लक्ष्य रखा। कृषि बजट के लिए 75,000 करोड़ से ज्यादा की उन्होंने रकम दी है। तो वहीं F20 की अगर मैं बात करूं तो F20 में गेहूं के लिए जहां 62,802 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो वहीं F21 में गेहूं के लिए 75,060 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 2022 तक किसानों की लागत से दोगुनी आमदनी करने का लक्ष्य फाइनेंशियल मिनिस्टर ने जारी किया है। तो ये बड़ी जानकारी। अगली जनगणना डिजिटल माध्यम से होगी, ये भी उनका कहना है। 5 फिशिंग हब बनाने पर योजना जिनकी शुरुआत होने जा रही है, तो 5 फिशिंग हब बनने की शुरुआत होगी। 15,000 आदर्श स्कूल खोले जाएंगे। ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण क्योंकि इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर बच्चों की बात की जाए तो यहाँ पर बच्चों को भी कई उम्मीदें थी इस बजट को लेकर। और तमाम जानकारी के साथ अमनदीप मेरे साथ भटिंडा से जुड़ गए हैं, उनका मैं रुख करूंगी। अमनदीप, कैसा रहा बजट? व्यापारियों की क्या राय और कितना व्यापारियों को इस बजट से उम्मीदें थी? क्या उम्मीदें खरी उतरी? निकिता, बताना चाहेंगे व्यापारी वर्ग को काफी उम्मीद थी इस बजट से। कुछ व्यापारी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो केंद्र सरकार द्वारा बजट पेश किया गया? हर बार उम्मीद होती है हमको कि बजट बहुत अच्छा आएगा, आम लोगों के लिए सोचा जाएगा, लेकिन हर बार खाली लिफाफा ही निकलता है। जैसे अगर हम देखिए तो इसमें बताया कि 75 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, 75 साल या 75 साल से ऊपर से, उनको इन्होंने इनकम टैक्स में जो ये छूट दी है, तो ये इस छूट को हम छूट नहीं गिनते। अगर इनको मतलब कुछ सीनियर सिटीजन के लिए सोचना चाहिए था, तो जो उनकी एज है 60 ईयर की, तो 60 ईयर को भी इन्होंने इन्वॉल्व करना चाहिए था। 75 ईयर में कोई छूट देना मतलब ये खाली लिफाफा है और कुछ नहीं है। इसके अलावा जो एजुकेशन के ऊपर इन्होंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और हेल्थ के ऊपर भी इन्होंने कोई खास मतलब बजट नहीं रखा। जबकि क्या उम्मीद थी आपको? अगर आपको भी मतलब देखिए, कोई भी जो देश है वो तभी स्ट्रांग होगा। आप किसी भी देश में देख लीजिए जहाँ पर उनका एजुकेशनल और हेल्थ सिस्टम है जो वो स्ट्रांग है, उसके ऊपर अगर वो खास ध्यान देते हैं तो ही वो ज़्यादा मतलब तरक्की कर पाते हैं। वो यहाँ पर हमारे एजुकेशन सिस्टम का आज़ादी के बाद से ही बहुत बुरा हाल है। इसके अलावा अगर हेल्थ सुविधाओं का देखें तो हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं उनका बेड़ा गर्क। तो एक उम्मीद थी कि शायद इसके ऊपर ये सरकार पहले इतने लंबे टाइम से नहीं सोच रही, शायद इस बार कुछ लेकर आए, लेकिन इस बार भी इन्होंने कुछ ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। कोविड की बात करें, सरकार कह रही है कोविड को हमने बड़ी अच्छी तरह से जो है काम किया कोविड में, और हेल्थ के लेकर हमने बड़ा जो अभियान चलाए, उसको लेकर आप सब जो घटनाक्रम है उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, कोविड के लिए जो चलाया सरकार ने, ठीक है, वो हम शुरू से ही कह रहे हैं, अभी उनका कोई सारा कुछ अनप्लान्ड था।
बात हर बार जो इन्होंने अपने रूल रेगुलेशन चेंज किए 15-15 दिन बाद, कभी बढ़ा देते थे, कभी कम कर देते थे। कम से कम 400-500 बार इनकी गाइडलाइंस आई है, तो ये इनको खुद ही नहीं पता था अभी कोविड में क्या करना है क्या नहीं करना है। ये तो बस लोग अवेयर थे, ठीक है, इन्होंने अपनी तरफ से अवेयरनेस वगैरह का चलाया या वो किया, लेकिन असल में अगर हकीकत में देखा जाए तो सरकार खुद कंफ्यूज थी, अभी तक कंफ्यूज है। अंकिता, व्यापारी वर्ग का कहना है भी जो उनको उम्मीदें थी इस बजट से वो अभी तक जो है सरकार उस पर ध्यान नहीं दिया और लोगों को काफी उम्मीदें थी इससे। जी अमनदीप, देखिए आपके साथ कई व्यापारी मौजूद हैं और आप उनसे पूछिए। यहाँ पर लगातार ये बात कही जा रही थी कि टेक्सटाइल जो पार्क हैं वो खोले जाएंगे। 7 ऐसे टेक्सटाइल पार्क हैं जो 3 साल में खुलेंगे और इससे तो व्यापारियों को काफी, जो भारत का माल है वो एक्सपोर्ट हो सकेगा। टेक्सटाइल की बात की जा रही थी, टेक्सटाइल जो खोलने जाने की बात की जा रही थी, उसको लेकर भी कुछ आप कैसे देखते हो? जो टेक्सटाइल की बात की जा रही है, अभी इससे इंपोर्ट का काम बढ़ेगा। देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बढ़ेगा, लेकिन इसमें जो फायदा है वो मिडिल क्लास लोगों को और गरीब लोगों को कम होगा। ये तो पहले ही जो सरकार है, जो कॉरपोरेट घरानों का सोच रही है शुरू से ही, तो जो इतनी बड़े बड़े ये जो टेक्सटाइल मिलें लगाने की कर रहे हैं, तो यहाँ पर आम लोगों को रोजगार कम मिलेगा। तो इनको हर वर्ग का सोचना चाहिए था, तो हर वर्ग की तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया, खास करके मिडिल फैमिलीज और जो पुअर फैमिलीज है, जो उनकी तरफ। इंपोर्ट बढ़ने के साथ सरकार की जीडीपी में फर्क पड़ेगा। आप मानते हैं, सरकार का मानना भी इससे जो है आर्थिक जो लाभ काफी हद तक हो सकता है? नहीं, इसके बारे में अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जब ये करेंगे ग्राउंड लेवल पे, फिर इसके रिजल्ट सामने आएंगे। अकेला बातों से कुछ नहीं होता। इनका कहना है भी सिर्फ अभी तक बातें हैं, जब ये लागू होंगे तभी कुछ कह सकते हैं। जी अंकिता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनदीप तमाम जानकारी के लिए। तो बजट के बाद जनता की राय आपने सुनी और जनता का कहना है कि ज्यादा छूट नहीं दी गई है बजट में। कुछ लोग इस बजट से खुश नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग का ये मानना है कि ये बजट अच्छा है सरकार की और साथ ही जनता की उम्मीदों के अनुरूप ये बजट है। तो भारत में कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा, ये कहना वित्त मंत्री का। टैक्स सिस्टम पारदर्शी होगा। देखिए, जो बजट है वो पेश कर दिया गया है, अब जो प्रतिक्रिया है वो आना शुरू हो जाएंगी और जनता की प्रतिक्रिया